जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय वृषभानु परमहंस परिव्रजकाचार्य सत्पुरुष शिष्यनाथ His Divine Grace Bhagavad Chana Arvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Deputy Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai Jai Vishnupada Paramahamsa Parivrajakaacharya Stattarasata Shri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमस्चार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देव की जय तुलसी महारानी की जय समस्त भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंद ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
Glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, chapter number 18, and text number 45. Okay. King Yati regains his youth. Iti pramuditaha Guru Pratyak Yurha Jaram Pituhu So api Tadvayasa Kaman Yatha Jujjushe Nrupaha Iti pramuditaha Guru Pratyagrahnan Jaram Pituhu So apitad oyasa kaman Yathavad jujushe nrupa Iti pramuditaha Guruhu Pratyagrahnan jaram Pituhu So apitad vayasa kaman Yathava jujush nrupa Iti pramuditaha Guru Pratyagrohan jaram Pituhu So apitad vayasa kaman Yathava jujushe nrupa Iti, in this way, pramuditaha, very pleased, Uruhu, Uru, Pratyagrahana, accepted, Jaram, and the old age and invalidity, Pituhu, of his father, Saha, that father Yayati, Api, also, Tadvayasa, by the youth of his son, Kaman, all desires, Yathavat, as required, Jujushe, satisfied, Rupa, O Maharaj Parikshit. Translation. Sukadeva Goswami said, in this way, O Maharaj Parikshit, the son named Kuru was very pleased to accept the old age of
of his father, Yayati, who took the youth of his son and enjoyed this material world as he required. Saptadvipapatihi samyak pitruvat palayan praja yathopajosam vishayan jujushu vyayatendriya. Saptadvipapati, master of the entire world consisting of 7 islands, Samyak completely, Pitruvat exactly like a father, Palayan ruling Prajaha, the subject, Yatha Upajosham, as much as he wanted, Vishayan, material happiness, Jujushe, enjoyed, Avyahata, being without being disturbed, Indriya, his senses. Translation. Thereafter, King Yayati became the ruler of the entire world, consisting of 7 islands, and ruled the citizens exactly like a father. Because he had taken the youth of his son, his senses were unimpaired, and he enjoyed as much material happiness as he desired. Text number 47. Devayanya upay anudinam manodvakti vastubihi preyasah paramam pritimuvaha prihasiraha. Devyani, Maharaj Yayati's wife, the daughter of Shukracharya, Api also, Anudinam, 24 hours, day after day, Manahat by the mind and words, Deha, body, was to behave with all requisite things, Preyasaha of her beloved husband, Paramam, transcendental, Pritim, bliss, Uttaha, executed, Preyasi, very dear to her husband, Raha, in seclusion without any disturbance. In secluded places, engaging her mind, words, body, and various paraphernalia, Devyani, the wife of Maharaj Yayati, always brought her husband greatest possible transcendental bliss. Ajayad Yagya Purusham Kratur Bur Dakshinaihi Sarvadevamayam Devam Sarva Vedamayam Harim. Ajayat worshipped Yagya Purusham, the Yagya Purush, the Lord, Kratubihi, by performing various sacrifices, Bhuri Dakshinaha, giving abundant gifts to the Brahmanas, Sarva Deva Mayam, the reservoir of all demigods, Devam, the Supreme Lord, Sarva Veda Mayam, the ultimate object of all Vedic knowledge, Harim, the Lord, the Supreme Personality of Godhead. King Yayati performed various sacrifices in which he offered abundant gifts to the Brahmanas to satisfy the Supreme Lord Hari, who is the reservoir of all demigods and the object of all Vedic knowledge. Yasmin nidam vicharitam virachitam vyomiva jaldavalihi naneva bhati nanati swapna maya manoratha. Yasmin, in whom idam, this entire cosmic manifestation, virachitam, created, vyomni, in the sky, eva, like jalada avalihi, clouds, nana, eva, as if in different varieties, bhati is manifested, na abhati is unmanifested, swapna maya, illusion like a dream, manaha, rathaha, created to be traversed by the chariot of the mind. Translation and purport by His Divine Graces Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Supreme Lord Vasudeva, who created the cosmic manifestation, exhibits himself as all-pervading, like the sky that holds clouds. And when the creation is annihilated, everything enters into the Supreme Lord Vishnu, and the varieties are no longer manifested. And the purport Srila Prabhupada says that as stated by Lord himself in Bhagavad Gita, 7th chapter, 19th verse,
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानानां मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me. Knowing me took the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. The Supreme Personality of Godhead Vasudeva is one with the Supreme Brahman and Supreme Absolute Truth. Everything is in him, and in the beginning and at the end it will manifest enters into him. All the manifestations enters into him. He is situated in everyone's heart. Sarvasya chaham radhisanyavishta. And from him everything has been emanated. Janmanyasya yataha. All material manifestations, however, are temporary. The word swapna means dreams, maya means illusion, and manoratha means mental creations. Dreams, illusions, and the mental creations are temporary. Similarly, all material creation is temporary, but Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, is the eternal, absolute truth. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Shri Chaitanya Mahavishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupapadamahim Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tatapadakkamalam Shri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sadhujatam Sahagana Raghunatham Tam Sujivam Sadvaitam Savadutam Parijan Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakamitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenavantam Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusate Devi Pranamami Hari Pri Vanchakalpatrubhischa Vipasindhubhyev Patikanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaha Om Vishnupadaya Krishna Krishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desakarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shri Vasari Gaur Bhakta Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So, the curse have been counteracted by Guru giving his youth to his father. So, to fulfill the desires of the father is the duty of the son. It's very important that we have seen, and that is the pivot of the culture and traditions. It all surrounds that son must be obedient to the father because he is responsible to bring him in this material world. इस भौतिक संसार में जीव को आना संभव पिता से होता है, माता शरीर धारण करवाती है। अभी तो साइंस में भी वो क्लोनिंग करते हैं बिना पिता की आवश्यकता के अनुसार, पर लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्लोन्स कैन नॉट फर्दर प्रोक्रिएट। तो कहने का मतलब है जीव है, भगवान का अंश है, वो सिर्फ शरीर टिकाने के लिए नहीं, शरीर को धारण करने वाला जीव है। अपरे नितस्कन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाभाव ये एकदम धार्यते जगत। भगवान
भगवत गीता में कहते हैं कि भूमिरा पुनरो आयु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टरा। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार एक 8 प्रकार की मेरे से भिन्न प्रकृति है। ये शरीर भिन्न प्रकृति का है, पर अपरिमित स्तन्याम, इससे ऊपर एक दूसरी प्रकार की भी मेरी शक्ति है, प्रकृति है। अपरिमित स्तन्याम प्रकृति विद्धि में परा, ये मेरी परा प्रकृति का अंश है। परा प्रकृति है सुपीरियर एनर्जी, जीव भौतिक एनर्जी का नहीं है, सुपीरियर। तो यया इधर धार्यते जगत, इसकी जब एंट्री होती है तब कांचला जगत प्रकटता है। जब यानी जन्म, गर्भ यानी जन्म, तो थोड़ी देर ही टिकने का ही मामला है सारा जगत में। वो जीव धारण करता है, लेकिन जीव का ये भौतिक प्रकृति का असली स्थान नहीं। तो भगवान के साथ ये सारा निस्बत ऐसा चरित्र रखता है कि एक काम चला इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि कोई ठान बैठता है कि चलो 50 साल के काम में निवृत्ति हो जाऊं, क्योंकि मेरा मूल धर्म तो भगवत प्राप्ति है, तो अर्थ काम के बाद मोक्ष की संभावना बनी रहती है। कलयुग में मोक्ष यानी मुक्ति का साधन अलग सा बताया ही नहीं, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल। कलयुग में मुक्ति करने का साधन जो यज्ञ दान और तप क्रिया कभी छोड़ने को नहीं कहा, क्योंकि वो मनुष्य को पवित्र करती है। तो वो पहले 3 युगों में आवश्यक, कलयुग में तो ये तीनों प्रक्रिया बेकार हो जाएंगी। यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण भी चाहिए, एक ब्राह्मण थोड़ा यज्ञ कर सकता है, 4 ब्राह्मण चाहिए। और उसके जो सिद्धांत होते हैं, उसकी जो रीतियाँ होती है, तो सब में एक्सपर्ट होते थे। ब्रह्मा सारे यज्ञ की देखरेख के लिए स्थापित किए जाते हैं, वो पहला पृष्ठ कहलाता था। दूसरा है सामवेदी, जो सामवेद के मंत्र का उच्चार सही मीटर में करता था। और उसी प्रकार तीसरा ऋत्विक रीत रिवाजों पर ख्याल रखने वाला था। और चौथा होता, यानी कि यज्ञ में आहुति देता है सबके लिए। और आपके पास सिर्फ थोड़े दाने चावल इत्यादि डरवाता है। तो ये ऋत्विक तो होता, सामवेदी और ब्रह्मा, 4 पृष्ठ होते हैं। यहाँ तो एक द्वारा ही है, अभी बोल करा देते हैं, क्योंकि कलयुग में ये यज्ञ स्थापित करना, उसकी पूरी जानकारी इत्यादि जो पहले 3 युग में होती थी, कलयुग में नहीं। तो स्वाभाविक रूप से यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में जप यज्ञ मेरा मुख्य हेतु है। क्योंकि ये माला करना भी कितनी मुश्किल होती, तो यज्ञ ही कराना। यज्ञ यानी ग्रेट एंडियर, और बड़ा यज्ञ करने जा रहा है, इसका मतलब क्या है? He has to sacrifice everything for achieving the purpose. तो यज्ञ, तो कलयुग में हरिनाम ही एकमात्र यज्ञ होता है, सही। और तीनों का परिणाम जो होता है तो सिर्फ हरिनाम द्वारा कलयुग में आपको प्राप्त, उससे भी ज्यादा आसानी से प्राप्त होगा। पर लेकिन मंद बुद्धि वाले, मंद भाग्य वाले और हमेशा पीड़ित रहने वाले लोग के मन में स्थिरता कहाँ आएगी कि हम जप भी ठीक करें। जप करने में मुश्किल आती है, क्या आसानी से करती है?
और मेरे बीच सारी मुश्किल हो गए। हाँ तो बोलो मुश्किलें आती है, आराम से कर सकते हैं। मनुष्य शरीर मर्यादा वाला है, उससे अमर्यादित काम नहीं लिया जा सकता। तो लेकिन ये मर्यादा क्यों रखी? कलयुग में मर्यादा क्यों रखी? क्योंकि हम अभागी हैं, तो यानी कि हमारा भाग्य इस कलयुग में होता है। फिर भी हमारे में कितना अहंकार होता है। अभागी होते फिर भी अहंकारी। देखो उल्टा धंधा, हमेशा पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे ये स्थिति में जो हेतु की प्राप्ति के लिए पहले 3 युगों में की जाती है, वही हेतु भगवान नाम का जप इत्यादि की महिमा पूरे ढंग से जानने से प्राप्त होती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। अनेक अनेक मनुष्य जन्म पसार होते हैं, तब थोड़ी अकल ठिकाने आने लगती है। तो ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, मेरे बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है वो मेरे शरण में आने का जब सोचता है, तब वासुदेव सर्वमिति, कौन सी जानकारी? जो कुछ है सदैव भगवान श्री कृष्ण है, जो वसुदेव के बेटे। तो वासुदेव सर्वमिति, ये सब ये मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए हैं, पर ये तो वासुदेव, तो भगवान के साथ कनेक्शन है। और भगवान की शक्ति तो मोक्ष मरो के अंदर स्वरूप दिया जाता है, इसलिए कि वो उसकी शक्ति हो गई। तो भगवान की शक्ति से जो उत्पन्न हुआ है वो सभी भगवान की सेवा में जाना चाहिए। तब उसका ज्ञान भक्ति में बहुत तेजस्वी बनता है। तब इसी तरह श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो पुरु ने अपने पिता की सारी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी जुवानी का बलिदान दे दिया और उसका बुढ़ापा स्वीकार कर लिया, ये उदात्त चरित्र बताता है। क्योंकि हर एक के हृदय में परमात्मा तो बसे है। जैसे ययाति के हृदय में भी था तो पुरु के हृदय में भी है। तो जब दूसरे बच्चे नासमझ होने के कारण उनकी संस्कृति कुछ और ही रही, इंद्रिय तृप्ति वाली रही, वो वैदिक संस्कृति के बाहर हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन लोगों को यूरोप के 2 देशों में बसाया गया, 2 बेटे। एक रोमन एम्पायर उसने स्थापित किया, दूसरे ने ग्रीक एम्पायर स्थापित किया। तो यानी कि ये वैदिक संस्कृति के पेरिफेरी के बाहर है। तो कितनी ताकत होगी कि वो आने ही नहीं देते इनको। एक बार घर से बाहर निकाल देते हैं, दोबारा वापस नहीं आ सकता। जब तक वो निकालने वाले की इच्छा न हो, निकाल नहीं सकते और वापस नहीं आ सकते। तो कितना पावरफुल
रिएक्शन होता है। और भगवान तो सब हर एक के हृदय में बसे हैं, लेकिन हर एक की इच्छा पूर्ण करने के लिए विटनेस के रूप में ही है। हाँ। भगवान परमात्मा के रूप में सब देखते रहते हैं, वो जानते हैं कि ये हम लोग क्या करने वाले हैं। हाँ? उसको पहले पता चल जाता है, क्योंकि वही सारी अपनी वृत्तियों के जानकार हैं। लेकिन हमें उन्होंने देखा नहीं, और उनको उनकी क्या इच्छा है वो हम जान भी नहीं सकते। कठोपनिषद ने कहा कि एक ही वृक्ष की एक डाल पर दो रूप रंग में समान पक्षी है, लेकिन एक के मुख में यानी कि चोंच में फल है, और उसका स्वभाव एक फल की रक्षा के लिए हमेशा सजाग रहता है और विह्वल होता है कि कौन चुरा न जाए, एंजाइटी से भरा है। और दूसरा पक्षी उसका मित्र पक्षी है, उसे शांत भाव से देखता रहता है, क्योंकि उसके मुख में फल नहीं। एक फल से बंधा हुआ पक्षी रूप रंग में परमात्मा के समान है, लेकिन स्वभाव में अंतर है। बंधा हुआ स्वभाव विह्वल भय बना के बैठा है। किसने कहा था कि तू जा, ये दुनिया तेरे लिए तेरी उपभोग के लिए बनाई? किसने कहा? कहीं लिखा ही नहीं। फिर भी ना समझ होकर रजोगुणी स्वभाव के अपनी अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए करते रहते हैं। पर ये भी स्वभाव परावर्तित स्वभाव है। सच्चिदानंद का परावर्तन सत्व रज और तमो में हुआ। अध्यात्म यानी कि भगवान के जगत में सच्चिदानंद स्वभाव होता है, जबकि भौतिक जगत में वो ही पलटी मारकर सत्व रज और तमोगुण में स्वभाव बन होता है। सत का सत्व बना, चित्त का रजोगुण बना, और तमोगुण आनंद का विपरीत बना। उल्टे ही स्वभाव वाले। जब उल्टे स्वभाव वाले आत्मा का सच्चिदानंद स्वभाव ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, उसका नाम मनुष्य जीवन। मनुष्य कौन होता है? मनु के संतान है। मनु की संतान सभी भगवान के कार्य में मैंने कहा ना कि देवहूति मनु की संतान में बहुत बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, क्योंकि वो भगवान उसकी रक्षा करेंगे, भगवान ही उसकी। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो भगवान को अपने हृदय में बिठा कर ही चलता हो। यानी कि शादी करना जब अपने हृदय में भगवान को बिठा कर चले, तो इनके साथ शादी करना, दूसरों के साथ नहीं करना। My God, they have to rethink. कहने का मतलब है कि ये कर्दम मुनि और देवहूति का दृष्टांत सबसे आदर्शग्रस्त जीवन का है। तो पिछली बार कहा कि कन्या पधरा हो सावधान, बी अवेयर डॉग्स लगा कर बैठते हैं, हालांकि बी अवेयर ऑफ माया, बी अवेयर। बात करेगी, कोई भी आएगा, भगवान के भक्त इसको बात नहीं करते, तो बाहर जाते हैं तो कुत्ते भोगते हैं मेरे पीछे।
मेरे पीछे भी पड़े थे कई सालों पहले। मैंने बोला मॉर्निंग वॉक करने जाऊँ तो धंधा उल्टा हो गया, मैं तो भागा वापस आ गया। कुत्ते के तो ये सिगरेटों पर थोड़ा है, कहाँ से भटक रहा है, हमारी जगह पर है, तब वापस आ गए। मैंने बोला यहाँ तो मॉर्निंग वॉक भी नहीं हो पाता, अब तो आप सोचते ही नहीं कि जाए। जो परदेसी कहता है, कुत्तों के लिए भी हम परदेसी हैं। जो भी है ये स्वभाव के अनुसार जबकि भगवान का स्वभाव, भगवान की शक्तियां जानती है। अपना स्वभाव हमें ही पता नहीं कि ऐसे पट्टा कैसे मारा हमने। भगवान और हमारे में ही अंतर है। हाँ? अपना स्वभाव जानने के लिए पति पत्नी एक दूसरे का स्वभाव जानने का प्रयत्न करते हैं, बट इट इज टू लेट आफ्टर गेटिंग मैरिड। इसलिए मन में रह जाती, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता। तो जानना चाहिए ना स्वभाव कैसा है। हाँ? तो स्वभाव में स्व यानी खुद का क्या, आत्मा का भाव क्या है उसका, क्योंकि ये लोना नहीं है शरीर। हाँ? शरीर में आत्मा जीवंत है, तो आत्मा का स्वभाव जानने की आवश्यकता होती है, नहीं के शरीर के स्वभाव। दैवी गुण देखने होते हैं। तो भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में बसे हैं। तो इन पर आत्मा का स्वभाव कैसा है वो जानकारी पिता के द्वारा प्राप्त होती थी, गुरु के द्वारा प्राप्त होती थी। लेकिन अभी तो बच्चे पैदा होते हैं, बिगड़ जाते हैं, बाद में और धमकाते हैं। तुम यदि ठीक नहीं बनता तो ये साधु पकड़ के ले जाएगा। तो अरे बाबा साधु पे पकड़वा थोड़ा है, बच्चों को उठाता है नहीं, लेकिन ऐसे ही माँ बाप धमकाते हैं, नहीं सुनेगा तो ये साधु पकड़ के ले जाएगा। तो हम शरारत नहीं करेंगे। ये स्वभाव नहीं है। साधु का स्वभाव कैसे होता है? तो जब भगवान का जो स्वभाव है, जिसे कृष्ण भावना कहते हैं, तो हर एक जीव की सर्वप्रथम जिम्मेदारी होती है कि भगवान के स्वभाव को जानना चाहिए। उसका ज्ञान तो कोई देता नहीं। प्रभुपाद जी ने सारी व्यवस्था की, फिर भी कोई आता नहीं। और we never thought to become full-time devotee. जो भी है, जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास, हरि के पास जाना, ये जो रास्ता है वो शूरवीरों का होता है, कायरों का नहीं। तो शूरवीर कौन होता है? भगवान के सामने अपना मस्तक रख देता है, उनके चरण कमलों में, बाद में हरि नाम करता है। सर्वप्रथम भगवान का स्वभाव जानकर अपना मस्तक उसके चरण कमलों में रखता है, बाद में हरि नाम करता है। अभी तो कलयुग में उल्टा है, पहले हरि नाम करो, बाद में पता चलेगा कि मस्तक कहाँ रखना है।
क्योंकि मस्तक होता ही नहीं तो रखे की आवश्यकता ही ना है। किसी के पास कोई खोपड़ी है? किसके पास है? हरि का मार्ग है शुराओं का, यानी शरीरों का, इसमें कायरों का काम नहीं है। वहां सर्वप्रथम मस्तक रखना है भगवान के चरणों में, बाद में हरे कृष्णा महामंत्र जपाई करो जपाई करो। यदि शरणागति होने की भावना नहीं है तो नाम जपने की भी आवश्यकता नहीं। जिसको भगवान के नाम जप की महिमा या अपने जीवन में आवश्यकता ही नहीं समझते हैं, वो लोग लेते ही नहीं, तो सिर्फ उनकी मान्यता बनी रहती है लेकिन वास्तविकता नहीं रहती। और इस भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के मार्ग में जो डूबे हैं वो तो समुद्र है। गहराई में और जाओ तो बहुत सारे रत्न मिलेंगे। समुद्र मंथन में गहराई में से ही सारे रत्न निकले। कार्य कठिन है, इसलिए शुरुआत में पहले जहर जैसा ही लगता है। यतदग्रे विषमेव परिणामे अमृतत्वम्। शुरुआत में हमें बहुत कड़वा जहर जैसा लगेगा, तो हमारा वो नहीं पाएंगे, हम ज्यादा सो गए इसलिए तो ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। तो पहले तो कड़वा ही लगेगा। प्रभुपाद ने कहते हैं, if you do not chant a particular day because you are busy, you should not eat. You should not eat. You should not sleep even till you finish your rounds. So, and if you do that, that is called determination. Utsaha, nishchaya, dhairya, tattva karma karo. Then you will be taken care. Without determination, मैंने माला खत्म नहीं की है, 16 माला का जप नहीं किया है, तो मुझे खाने की आवश्यकता भी नहीं है। फिनिश एंड देन डू इट। क्योंकि आत्मा को खुराक, आत्मा का जो खाना है वो हरिनाम है। वो निश्चय तो हमें देना चाहिए आत्मा के विकास के लिए। तो ये परा प्रकृति करनी है, जो आत्मा की प्रकृति है। तो हमें भक्ति करनी है परा प्रकृति के नियम के अनुसार, अपने शरीर के प्रकृति के नियम अनुसार भक्ति नहीं करना है। कंडीशन भक्ति नहीं, अनकंडीशन नो। तो भगवान हमेशा सर्वोपरि रहते हैं, रहना ही चाहिए। तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो पुरु ने ये जो पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए सेक्रीफाइस किया, यज्ञ में आहुति दी, अपने जवानी की आहुति दे दी। तो उतावली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिता की संतुष्टि के लिए क्या, संतुष्ट हो जाएंगे तो बाद में जवानी वापस मिल जाएगी। है तो भावना का ही लोग, भावना का अभाव जब पहले 2 बच्चे नहीं हुआ था, क्योंकि ना समझ रहे हैं
इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े। तो पश्चिमेर देश मूढ़ा अनाचार, far west you go, there will be more degraded people. अभी तो पाश्चात्यकरण में सारे देश बिगड़े, अपनी अपनी संस्कृति भूल गए हैं। मूढ़ और अनाचार्य। इंडियनों के पास जब प्रदेश में जाते हैं तो अपने संस्कार के अलावा कोई दूसरी विरासत होती ही नहीं, ताकि तो सब पलटी मारनी है, बदलती जाएंगे। तो बेहतर है, बोला था ना, लहू पानी से घाटा ही होता है, पानी पतला होता है। यदि लहू पतला बन जाए, if you mix up in your blood other culture, it will be diluted and it will not make you survive. तो इसी तरह हमें ये समझना है कि ये बहिरंगा प्रवृत्ति जो है, जो भगवान को न जानने के कारण न ते विदुर स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाय बहिरर्थमानि, तो अंधा यथा अंधै ही उपनीयमाना ये विषदन्त्या कुरुतां निबध्या मतिं न कृष्णे स्वतः परतरो वा मिथो विपद्येत ग्रहवृतानां अदान्त गोभिः विशतां तमिश्रं पुनः पुनश्चरितं चरणाः। तीसरा श्लोक महाराज नरसिंह भगवान की प्रार्थना में बोलते हैं कि नैषां मतिं तावत् उरुक्रमाघ्री स्पृशति न यदर्थम् उपगमः महीयसां यदि पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीतजावत्। ये 3 श्लोक को याद रखिए पूरे। न ते विदुः स्वार्थ गतिं विष्णु, हम अपना स्वार्थ गति विष्णु भगवान है वो जानते हैं। तो दुराशा है बहिरर्थमानि, हमारे दुराशय, आशय यानी इच्छा है, दूर बार भगाती रहती है, अंतर्मुखी नहीं कराती। तो बहिरर्थमानि, बाहर की चीजों को ग्रहण करने में हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, ऐसी अज्ञानता वाली वृत्ति बने, स्वभाव बना रहता है। तो एक अंधा आदमी दूसरे अंधे को कहाँ दूर सकता है? खड्डे में, यानी कि इनका कोई उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण पर मति ही नहीं, उसके स्वार्थ गति विष्णु और मतिं न कृष्ण स्वतः परतो, कृष्ण भगवान पर मति यानी कि बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। स्वतः यानी खुद के प्रयत्न से या दूसरों की मदद से या समूह में, राष्ट्र समूह जैसा समूह बना दो और फतवा निकालो, फिर भी नहीं। मिथो भी जब तक हम गृहव्रती हैं, यानी कि 4 दीवारों में इंद्रिय तृप्ति ही करते रहते हैं, तो गृहव्रतानां तो अदांत गोभिः विशतां तमिश्रम्। अदांत यानी अनब्रिडल, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाने वाली इंद्रियां। गोभी, ये गोभी यानी कि कैबेज नहीं, ये गो यानी इंद्रियां, गैया। कृष्ण is tending cows and senses, is the master of senses.
अदांत गोबे विषंताम तमिश्रम, वो लोग कहाँ फंसते हैं, कहाँ जाते हैं कि तमिश्रम नाम का नरक है। अंधा तमिश्रम, अंधा तमा प्रविशंति, ये जनाः पर्युपासते, ईशोपनिषद का श्लोक है। अंधः तमा प्रविशन्ते, क्या है दूसरा? फटाफट फटाफट, कितनी खोपड़ियां हैं। ये अविद्याम उपासते ततो ते भूयतमो ये विद्यायाम रतः। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में ही जाएंगे, जबकि विद्या की उपासना करते हैं तो भूयतमो, यानी कि वो लोग आत्मा की मुक्ति का मार्ग को प्राप्त करते हैं। विद्या तो सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या अपनी मुक्ति कराती है उसका नाम विद्या, बाकी अविद्या। स्कूल में पढ़ो, अविद्या है। जो सिर्फ पेट की विद्या देते हैं तो आत्मा के छुटकारे की विद्या क्यों नहीं देते? अज्ञानता है। तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विद्या नहीं प्राप्त होती है, संस्कार में प्राप्त होती है। श्री प्रभुपाद जी ने वही जिम्मेदारी दी। अंधतमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ते भूयतमो, ये विद्यायाम रतः। विद्या और अविद्या में ये फर्क है। सरस्वती देवी की पूजा करते हैं और परीक्षा में पास कर देना माता, लेकिन अविद्या की उपासना करता है वो सरस्वती के पास, जो विद्या की देवी है, वो पास करेगी या ना पास करेगी? अच्छे मार्क आए फिर भी ना पास करेगा, सही नहीं? हाँ, देखना तीसरा, एक अंधा दूसरे अंधे को खड्डे में ही गिराता है, उसका उद्धार नहीं कर सकता। और जो लोग ग्रहपति हैं, इंद्रिय तृप्ति घर की चार दीवारों में ही करते रहते हैं, तो वो लोग अज्ञानता के अंधकार में ही डूबे रहते हैं, इनका कोई विकास नहीं होता। लेकिन तीसरे श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं शांति तावत गुरुक्रमांति, गुरुक्रम यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो इतना उत्तम होता है। त्रिविक्रम, गुरुक्रम, जो वामन देव को कहते हैं, इनके 3 कदम कितने बड़े थे। सारी सृष्टि पैदा हुई और जो न भी पैदा हुई सबको कवर कर रखती है। 2 ही बात है, तीसरा कहा रखो, बाकी रहा। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पोते बलि को इशारा किया, तेरी खोपड़ी है, मेरी खोपड़ी का रखो। कितना भारी, तो पृथ्वी पर से निकाल करके पाताल लोक में दे दिए उसको। बाद में कहते हैं तेरी भक्ति कैसे, बहुत खुश हो, मैं तेरा चौकीदार पाताल में ही रहूंगा। भगवान देखो
भक्त को छोड़ते हैं, पनिश करके भी उसके साथ रहते हैं, छोड़ते हैं। यानी कि भगवान जब इस साथ में होते हैं तो कहीं भी भेजे भगवान तो साथ में ही होंगे ना। इसलिए बलि महाराज ने स्वीकार कर दिया, ठीक है। तो किसी भी स्थिति में भगवान का साथ गंवाना नहीं है, उसको ही केंद्र में रखकर अपना जीवन, इसलिए राधा दामोदर आए is the center of our life, क्योंकि ये स्वभाव तम नैषामते तावत उरुक्रमांग्री, भगवान जिसके सारे कर्तव्य इतने महान हैं, इनके चरण रज, उरुक्रम और अंग्री, अंग्री यानी चरण, इनका शेल्टर का विषय पैदा होता ही नहीं जब तक जिस अर्थ के हेतु के लिए हमें अपने ये जो अनर्थ निवृत्ति इत्यादि करनी है, हेतु के लिए अनर्थ निवृत्ति करनी है, उसका प्रश्न ही नहीं रहता, तो कभी भी नैषामते मति पैदा ही नहीं होगी भगवान के चरण को। तो ये तो मही असाम यदि पागर जोगिषेकम, बहुत सारे भक्त लोग बिना कारण ऐसे मुक्त रूप से विचरते हैं और इनके चरण कमल की रज लेना, लेकिन जब तक वो परमिट नहीं करेंगे, निष्किंचना न वृणीत जाओ, न वृणीत, वो लेने नहीं देंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। यहाँ तो जबरदस्ती से आकर पकड़ लेते हैं, उद्धार करो, तो चरण करो, उनकी रज की बात है। भक्ति आगे बढ़ाने के लिए साधुओं के चरण पे चढ़ानी चाहिए भक्त है। इंडिया में क्या करते हैं पता है, कोई भी रास्ते में आता है गेरुआ देख कर छूने आते हैं, लेकिन भाग जाते हैं। अरे भैया ये छूने से क्या मतलब हुआ? एक प्रकार की आदत बन जाती है परिक्रमा मार्ग में, हमें इसीलिए नहीं जाना क्योंकि सब हमें चलने ही नहीं देंगे, तो हम नहीं जाते। सबको चरण, लेकिन जब तक सुनते नहीं तब तक मत्थे चढ़ाई कैसी होगी, अभिषेक कैसे किया, ये मत्थे पर चढ़ानी है, यानी कि खोपड़ी में डालो इनका आदेश, वो करना नहीं चाहते, सिर्फ आदत बन गई। मही असाम यदि पादर जो भी शिक्षण निष्किंचना न वृणीत जाओ, ये निष्किंचन है, खुद खोखले हैं, लेकिन भगवान से समृद्ध है। इसलिए भगवत प्राप्ति का साधन गुरु की चरण रज मत्थे पर चढ़ाने का तब से शुरुआत होती है, नहीं तो मति आती ही नहीं। क्योंकि दिखाव के लिए गुरु थोड़ा करते हैं। तो ये सारा जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, ये गुरु को अपने पिता की ऐसी सेवा करने से प्राप्त होता है। तो किसी को कोई प्रश्न है? डायनेस्टीज था तो उन some
Shudras, they went to establish the Roman and Greek. But what about Yadu? Why wasn't he exiled? Why was he allowed to stay and हुआ मैं नहीं था, प्रभुपाद जी कोई परपट में लिखते हैं क्या? गुरु से पहले देवयानी ने यदु, तुर्वसु, शर्मिष्ठा ने द्रुप्यु, अनु एंड पुरु, सही? हाँ। from his 5 sons, Yadu, Turvashu, हाँ, तो ये 5 बच्चे हैं। पुरु सबसे छोटा है, लेकिन शर्मिष्ठा का बेटा है। शर्मिष्ठा का बेटा अपने पिता का मान रखता है। देवयानी का कोई बेटा नहीं, क्योंकि राक्षस गुण वाले हैं, और वो राजसिक गुण होते हुए भी पुरु सबसे छोटा काबिल निकला। Yadu dynasty, Yavan, Yudhishthir dynasty, Bhoja dynasty, Mlecha dynasty, Greek, and Kaurav dynasty all emanated to spread all over the world. तो और सबको exile कर दिया, लेकिन यदु को नहीं exile किया। Now सुनो, in this verse number 36, some शुक्राचार्य जब श्राप देते हैं तो क्या कहते हैं? शुक्राचार्य was extremely angry. You untruthful fool, lusting after women. अरे उसकी बेटी है। You have done a great wrong. He said, I therefore curse you to be attacked and disfigured by all invalidity. देखो, जब श्राप निकलता है तो अपनी बेटी के हित में नहीं है, वो अंधा हो गया। खुद की बेटी क्या करेगी उसको पता नहीं। जवानी में दूसरा ब्याह करेगी, नहीं तो जिंदगी भर अपने पिता के मत्थे पर रहेगी आश्रित। वो तो शास्त्र में बताया नहीं। तो यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ है वो देखना। तो प्रतिलोम विवाह में डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए बताते हैं। जबकि ययाति was truthful, उसने हिम्मत से बोल दिया कि I am not satisfied by my lusty desires. तब कॉम्प्रोमाइज दिखा। तो यानी कि कॉम्प्रोमाइज के लिए बाध्य होना पड़ा उसको। खुद ने अपनी कमजोरी स्वीकारी तो शुक्राचार्य को बाजी पलटनी पड़ी। कहो कि जा तू अपने कोई बेटे के साथ तेरी बुढ़ापा एक्सचेंज कर रहा है। कष्ट देने की क्या आवश्यकता, और कलयुग में ऐसे कष्ट कहाँ किसी को छूट।
अब he was truthful. Yeah, he was truthful. सत्य ही एक ऐसी चीज है जो चार युग में एकमात्र बची रहती है। बाकी 3 का ह्रास होता है पहले 3 युग में। इस कलयुग में truth is prevailing still. It cannot be destroyed. तो अपने बेटे के पास भी यही सत्य बता देता है कि मेरी कमजोरी है, मैं अतृप्त हूं। और ऐसी बात नहीं कि यह हमेशा के लिए है। He said, I may take your youth, so I may enjoy life for a few years more. यदु क्या बोलता है? My dear father, you have already achieved old age, although you also were a young man. But I do not welcome your old age and invalidity, for unless one enjoys material happiness, one cannot attain renunciation. Is it a valid argument for today? Material enjoyment से satisfied नहीं है, वो करो, बाद में one will attain renunciation. जो चीज पहले से सिखानी है वो अंत में कौन सीख पाएगा? When after you get too much attached. तो उल्टा धंधा है ना, ये संस्कार नहीं है। So you loses his so-called merits of being the eldest son of Devyani. यानी कि ये प्रतिलोम विवाह है, तो रजोगुण राजाओं में ज्यादा होता है, तो he was correct. Yayati was correct, but Yadu is wrong. Yadu is wrong because he is a mixed, but he is envious of his father. कि शर्म नहीं आती, पिताजी बूढ़े तो हो गए और हमारी जवानी लुटवाना चाहते हैं। मैं मूर्ख नहीं हूं। Is an envious person. तार दूसरे तुर्वसु दुर्हिर and Anu to exchange their youth for his old age, but because they were unaware of religious principles, they thought that their flickering youth was eternal, and therefore they refused to carry out the father's order. But in the purport, Srila Prabhupada is saying, Yadu is correct. He is saying that with knowledge. Because Krishna is coming in his Yadukul. Because Lord Krishna is coming, he wants to finish his... Yeah, it means even though Rajogun is captivating, we are overpowered by the mode of passion. And we think happiness lies here. So you invent more and more titillating instruments
to satisfy your desires. You are expediting the bondage more stronger rather than liberation. यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्ते न ते रमतेषु बुध. Sanskarshaja bhoga, especially the objects of sense gratification which are arising from the contact of the skin. Dukkhayona, they are the very breeding grounds for miseries. Those who are not religious, they do not know. Most of them are bewildered. कि लगता है तातले सही करते वारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे. Chaitanya Mahaprabhu liked this song of Vidyapati in Maithili. In the scorching desert, receiving a little drop of water does not satisfy. So similarly, Sutta, Mita, Ramani, and Samaj, son, friend, wife, and society. Whatever you are gaining, a little pleasure, it's like a drop in scorching desert. Tohe visari, it makes you forget Krishna. रोने का धंधा है. Everything has its functionary aspect, Krishna, but it is for the function only, not for sense gratification. People like Jaimini Rishi, they have put up karma mimamsa. What is karma? What is the origin? It's an interference in the working of Mother Nature is called karma. A willful indulgence in the working of Mother Nature is called karma. It will drive away your attention from the source of your spiritual emancipation. Against, will be taken away. Karma mimamsa is atheistic. The whole parameter is atheistic. If you are involved in karma, you are definitely going to be atheistic. Why? Animals do not interfere in the working of nature. Why man? So he is bound by the karma. You are also an animal, but karmanyavadhikaraste, but mahapadeshu kadachana. You have to avoid the results. They are not yours. But the whole world is working on this pivot of karma. And Jaimini Rishi, even though this is an atheistic principle that drives us away from, working. How can you keep on working outside
At the same time, you become Krishna conscious. Very risky business. Very risky business. So, all these other four children, you know, your question was what happened to the boys? Huh? Yadu. नाम तो अच्छा है लेकिन काम ठीक नहीं. He is not the origin of Yadu dynasty. He is not. Krishna expanded himself with 16,108 wives 10 times by giving them 10 children each. That created the Yadus, and Krishna withdrew them before he disappeared. Because whatever comes out from Lord Shri Krishna is as powerful as himself. So this is not that Yadu. Yadu Vansh was before this Yadu was produced. नाम तो दे दिया. कमल ने नाम देते हैं बच्चों का, लेकिन आंखों से काना है तो क्या करेगा? माँ के लिए तो कमल ने भी बने. अरे भैया एक आंख से काना है. भगवान का नाम कमल है. हाँ, उसकी आंखें कमल के पत्ती के समान है. All right. Thank you very much. Prabhupada ki.